2 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔ چنئی ریلوے اسٹیشن پر آج صبح 2 دھماکے ہوئے۔ یہ دھماکے بنگلورو گوہاٹی ایکسپریس میں اس وقت ہوئے جب ٹرین پلیٹ فارم نمبر 9 پر پہنچی۔ ان دھماکوں میں ایک خاتون کی موت ہو گئی۔ مہلوک خاتون پیشے سے سافٹ ویئر انجینئر بتائی جاتی ہے۔ ان دھماکوں میں دیگر کئی مسافر زخمی بھی ہوئے۔ دھماکوں سے ٹرین کے بوگی نمبر S4 اور S5 پوری طرح متاثر ہوئے۔ دھماکوں میں زخمی ہوئے مسافروں کو راجیو گاندھی گورنمنٹ اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ جانچ حکام کے مطابق ان دھماکوں کی نوعیت کم شدت کی تھی۔ دھماکوں کی وجوہات کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ جانچ حکام نے ان دھماکوں کو دہشت گرد کارروائی قرار دیا ہے۔ چنئی فورنسک ٹیم نے موقع واردات پر پہنچ کر حالات کا معائنہ کیا اور دھماکوں کی زد میں آنے والی منتشر ضروری اشیاء کو جمع کیا۔ بم انسداد دستہ اور دیگر سیکیورٹی حکام بھی جانچ میں مصروف ہیں۔ ادھر وزیر داخلہ سشیل کمار شندے نے کہا ہے کہ متعلقہ حکام کو اس ضمن میں معاملے کی تہہ تک جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس دوران تمل ناڈو کی وزیر اعلیٰ جے للیتا نے CBCID کو چنئی دوہرے دھماکے کی جانچ کا حکم دیا ہے۔ وہیں تمل ناڈو کے DGP رامانوجم کا کہنا ہے SIT دوہرے دھماکے کی جانچ کرے گی۔ ریلوے انتظامیہ نے واقعے کے بعد ہیلپ لائن نمبر جاری کیے ہیں۔ یہ نمبر کچھ اس طرح ہیں: 044-253-57398 اور 044-645-02416۔ زخمیوں کے رشتہ دار ان نمبرات پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اور ناظرین، ہم آپ کو بتائیں کہ چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن پر ہوئے بم دھماکے میں گنٹور سے تعلق رکھنے والی ایک سافٹ ویئر انجینئر کی ہلاکت ہوئی۔ گنٹور ضلع کے سری نگر میں رہنے والی سواتی چنئی میں ٹاٹا کنسلٹنسی کمپنی میں کام کرتی تھی اور چھٹی کے موقع پر گھر جانے کے لیے سواتی چنئی سے گوہاٹی ایکسپریس میں سوار ہوئی تھی اور بدقسمتی سے یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا۔ چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن پر ایک ٹرین میں 2 معمولی بم دھماکے ہوئے۔ عینی شاہدین کے مطابق بنگلور گوہاٹی ایکسپریس جیسے ہی چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 9 پر پہنچی، ٹرین کی بوگی نمبر S4 اور S5 میں 2 بم دھماکے ہوئے۔ ابتدائی جانچ کے بعد تحقیقاتی افسروں نے بتایا کہ پہلا دھماکہ بوگی S4 میں ہوا۔ اس دھماکے میں گنٹور سے تعلق رکھنے والی ایک سافٹ ویئر انجینئر سواتی ہلاک ہو گئی۔ سواتی اپنے گھر پہنچنے کے لیے چنئی سے بنگلور گوہاٹی ایکسپریس میں سوار ہوئی تھی۔ سواتی نے ٹرین میں سوار ہونے سے پہلے اپنے والدین سے فون پر بات چیت کی اور دوپہر 1 بجے تک گھر پہنچنے کی اطلاع دی۔ تاہم کچھ ہی دیر کے بعد ہی ٹیلی ویژن چینلوں پر چنئی سینٹرل ریلوے اسٹیشن پر ہوئے دھماکوں کی خبر نشر ہوتے ہی سواتی کے اہل خانہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ریلوے پولیس نے سواتی کے فون کی مدد سے سواتی کے والد کو TCS ملازمہ کی ہلاکت کی اطلاع دی۔ سواتی کے والدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں سواتی کو ملک کی باوقار سافٹ ویئر کمپنی میں ملازمت ملی تھی۔ سواتی کی اس کامیابی سے سواتی کے اہل خانہ میں خوشی کی لہر تھی، لیکن ان دھماکوں میں سواتی کی ہلاکت نے اہل خانہ کی خوشیوں کو ایک ایسے غم میں تبدیل کر دیا جس کا مداوع ناممکن ہے۔ مہلوک سواتی کے اہل خانہ کو ریلوے نے 1 لاکھ روپے کا ایکسگریشیا دینے کا اعلان کیا۔ وہیں دوسری جانب تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ جے للیتا نے بھی سواتی کے اہل خانہ کو 1 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بم دھماکوں میں شدید طور پر زخمی ہونے والوں کو ریلوے اور ریاستی حکومت کی جانب سے 50-50 ہزار روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ معمولی طور پر زخمی افراد کو 25-25 ہزار روپے کی امداد فراہم کی جائے گی۔ ان دھماکوں پر وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور تمل ناڈو کے گورنر کے روشیا نے افسوس جتایا ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ اور ماضی کی طرح چنئی دھماکوں پر بھی سیاست شروع ہو گئی ہے۔ BJP نے نریندر مودی کی ریلیوں کی سیکیورٹی کو لے کر ایک مرتبہ پھر خدشات کا اظہار کیا۔ ادھر کانگریس نے BJP کے خدشات کو یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا کہ دھماکے اس ریاست میں ہوئے جہاں انتخابات پہلے ہی ہو چکے ہیں۔
चेन्नई धमाकों ने एक की जान ली और कई को जख्मी कर दिया। मौका है मुतासिरीन के तई इजहार हमदर्दी का, लेकिन सियासी जमातें इसे भी इंतखाबात में भुनाने की कोशिश में जुट गई हैं। अपोजिशन बीजेपी मरकजी हुकूमत पर सिक्योरिटी के ताल्लुक से गैर संजीदा होने का इल्जाम आयद कर रही है। बीजेपी के मुताबिक इंतखाबात के दौर में शरपसंद माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं और मरकजी हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। बीजेपी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी और उनकी रैलियों को दहशतगर्दों के निशाने पर बताते हुए हुकूमत से संजीदा इक़दामात का मुतालबा किया है। There were enough indications that forces inimical to India, forces which are trying to create disharmony in India, have remained active and would remain active through the election process. Not only were we very concerned about the safety and security of BJP rallies, Shri Narendra Modi ji's rallies, and the threat perception was something which we were worried about. We did highlight it to Shri Sushil Kumar Shinde. कांग्रेस ने बीजेपी के खदशात को मुस्तरद किया है। This is a blast in Chennai. Tamil Nadu elections were completed on the 24th of April. There is no rally of Shri Narendra Modi at Chennai. तमिलनाडु की अपोजिशन जमातें डीएमके और डीएमडीके ने जयललिता हुकूमत को नज़्म-ओ-नस्क कायम रखने में नाकाम करार दिया है। रेलवे के ममलिकती वजीर आधीर रंजन चौधरी ने भी रियासती हुकूमतों को रेलवेज की सिक्योरिटी पर ध्यान देने को कहा है। आधीर रंजन के मुताबिक मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए रेलवे के वसी नेटवर्क को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करना महकमे के लिए मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ब्लैक मनी मामलों में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि वो 3 हफ्ते के अंदर ब्लैक मनी की जांच करने के लिए तश्कील दी गई एसआईटी के चेयरमैन और नायब चेयरमैन की तकर्री से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करे। अदालत उस्मा ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस एमबी शाह को ब्लैक मनी की जांच करने के लिए तश्कील करदा एसआईटी का चेयरमैन मुकर्रर किया जाए और जस्टिस अरजीत प्रसाद को नायब चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। The court has directed that within 3 weeks a notification should be issued by the Union of India for the appointment of Justice M.B. Shah, a retired judge of the Supreme Court, to be appointed as chairman, and Mr. Justice Arjit Prasad to be appointed the vice chairman, and they'll oversee the working of the SIT committee. And that's a very big breakthrough today. ब्लैक मनी मुकदमों की समाअत करते हुए आज ही सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को एक और हुक्म दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ब्लैक मनी से मुतालिक जिन मामलों की तहक़ीक़ात मुकम्मल हो चुकी हैं, उनकी तफसीलात 3 दिनों के अंदर अर्जी गुजार को भी बंद लिफाफे में फराहम कराई जाए। इससे पहले 29 अप्रैल को हुकूमत ने जिन मामलों की तहक़ीक़ात मुकम्मल हो चुकी हैं, उनसे मुतालिक तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंपी थी। कोर्ट ने इन्हीं तफसीलात को अर्जी गुजार को भी मुहैया कराने का हुक्म दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बस सिलसिला जारी रहेगा। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। कुछ दिन बाद पानी खातिर अपना दूर आके पैर ना तिरवावे के पड़ का हो। तेरा ससुराल से डोली आवे वाला का पानी हमरा लगे आवे वाला बा, निम्मन दिन आवे वाला है। सही बात बा। मोदी जी के जितावे के बा, अब भाजपा के बहुमत दिलावे के बा, तबे तो अच्छा दिन आई। कमल के बटन दबावे के, भाजपा के जितावे के। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है। मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है। मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को।
एक खिलाड़ी अकेला पूरे मैच को नहीं जिता सकता, इसलिए हमारा वोट उसी को जाएगा जो अकेले नहीं पूरे टीम के साथ खड़ा हो। हमारा वोट कांग्रेस को। साडा वोट तो उसी को जाएगा जिसने आज तक कभी किसी किसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। मेरा वोट कांग्रेस को। जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़े होने का, अपने दम पे जीने का मौका दिया, मेरा वोट उसी को। मेरा वोट कांग्रेस को। युवा है भारत के मजबूत हाथ। हर साल 2 करोड़ युवाओं को मिलेगी ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर और हर जरूरतमंद युवा को स्कॉलरशिप। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। महिलाएं हैं भारत के मजबूत हाथ। महिलाओं को मिलेगा जीविका के लिए 1 लाख रुपए तक का आसान लोन और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स में होंगी 25% महिलाएं। कांग्रेस की टीम है आपके साथ। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। बनारस का मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। जेडीयू ने केजरीवाल की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पार्टी तर्जुमान राजीव रंजन ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मुखालिफ है, इसलिए उसने केजरीवाल की हिमायत का ऐलान किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बनारस लोकसभा हलके में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। हिंदुओं की पावन नगरी में बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को इंतखाबात में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी उद्धव कुशानंद और द्वारिका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद मोदी के खिलाफ बनारस में मुहिम चलाएंगे। स्वामी उद्धव कुशानंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि वो बनारस जाएंगे क्योंकि जो लोग इख्तिदार हासिल करने के लिए समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बेनकाब किया जाना चाहिए। जबकि स्वामी स्वरूपानंद का कहना है कि वो खराबी सेहत की वजह से मोदी के खिलाफ मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और उनकी जगह स्वामी मुक्तेश्वर आनंद मुहिम चलाएंगे। वाज़ेह है कि स्वामी स्वरूपानंद के एतराज जताने के बाद ही हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा वापस लिया गया था। कुछ संगठन ऐसे हैं जो यहाँ धर्म और मजहब के नाम पर विद्वेष फैला करके देश को जला देना चाहते हैं और इस बीच में अपना सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना है और सद्भावना के साथ आपसी भाईचारे सामंजस्य के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था रहनी है जिससे देश का विकास होता रहे। और इस मामले में वो सबसे बड़ा लोकतंत्र का दुश्मन है जो वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए गया। और इस सब के बीच बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज सीमांध्रा के मुख्तलिफ अजला में रैलियां की। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर तनकीदों का निशाना बनाया। बीजेपी के वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को सीमा आंध्रा के चित्तूर, नेल्लूर और गुंटूर अजला का दौरा किया। मोदी ने चित्तूर जिले के मदनपल्ली में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीए हुकूमत ने आंध्र प्रदेश के अवाम को एतमाद में लिए बगैर ही रियासत को तकसीम किया है। इस मौके पर उन्होंने सीमा आंध्रा में नॉलेज सिटी बनाने का यकीन दिलाया। भारतीय जनता पार्टी में जो दिल्ली में सरकार बनेगी, हमने घोषणा की है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज सीमांध्र में सबसे बड़ी जरूरत है नॉलेज सिटी की।
दुनिया के उत्तम ज्ञान भंडार की अच्छे से अच्छी इंस्टीट्यूट का एक पूरा नॉलेज सिटी सीमांध्र तैयार हो, ये हमारा सपना है। बाद में नरेंद्र मोदी ने नेल्लूर में मुनक़िदा जलसे से भी खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को अब रिमोट कंट्रोल हुकूमत की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा आंध्रा को खुसूसी दर्जा दिलाने में बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। मोदी ने पोलावरम प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मुकम्मल ताउन करने का भी यकीन दिलाया। दौरे से पहले मोदी ने तिरुमाला के लॉर्ड बालाजी मंदिर में हाजिरी दी। मोदी के हमराह चंद्राबाबू नायडू और पवन कल्याण भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 7 मई को सीमा आंध्रा के 25 लोकसभा और 175 असेंबली सीटों पर पोलिंग होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हिंदुस्तान में हो रहे आम इंतखाबात में सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क के अवाम भी बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। नेपाल सरहद पर रहने वाले तकरीबन 2 करोड़ नेपालियों को नेपाल की हुकूमत से ज्यादा हिंदुस्तान की हुकूमत से सरोकार है। दरअसल 1950 में हिंद नेपाल के दरमियान हुए मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के अवाम के लिए सरहदें खुली हैं और अपने काम के सिलसिले में रोजाना लाखों लोग इधर से उधर आते रहते हैं। हिंद नेपाल सरहद पर रहने वाले अवाम का कहना है कि वो हिंदुस्तान के आम इंतखाबात में हक़ राय दही यानी अपने वोट का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन हिंदुस्तान में बनने वाली हुकूमत से जितना नफा या नुकसान हिंदुस्तानियों को होता है उसका उतना ही असर इन पर भी पड़ता है। महंगाई बढ़ जाती है तो हमारे यहाँ भी और ज्यादा ऊंची बढ़ जाती है। इसलिए अब कांग्रेस की सरकार में ज्यादा महंगाई हो गई है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरी सरकार बने तो कुछ हम लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी। असर आता है, जब हम लोग पड़ोस में हैं तो क्यों नहीं असर आएगा। हर चीज का असर पड़ता है। किस तरह से सर? अब जो हम लोग नजदीक हैं, पड़ोस में हैं, जो है हमारा जो है आना जाना उधर का है, उधर से इधर का है। हमेशा हम लोगों को दिन में 2-4 बार जरूर आते रहते हैं, तो क्यों नहीं असर पड़ेगा। हम देखते हैं कि जो इंडिया में चुनाव होता है उसका असर नेपाल में भी पड़ता है, और इंडिया में जो खुशी होती है वो नेपाल में भी खुशी होती है। इंडिया के लोग दुख उठाते हैं, नेपाल के भी लोग दुख उठाते हैं। इंडिया में चीनी महंगा होती है तो यहाँ भी चीनी महंगा होता है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की जानिब से जम्मू कश्मीर पर किए गए रिमार्क की हुक्मरान जमात कांग्रेस, अपोजिशन, बीजेपी और सरकर्दा शख्सियात ने सख्त मजम्मत की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा करार दिया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में यौम शहीदा के मौके पर मुनक़्क़िदा एक तक़रीब से खिताब करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ राहिल शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक से ताबीर कर दिया था। पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। कश्मीर से पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहा है और कश्मीर के लोग अपनी राय दे रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से इतनी दूर नहीं है कि उन्हें इस बात का पता न चले कि कश्मीर के लोग अपनी राय से अपनी पसंद की सरकार चुन रहे हैं। अगर कश्मीर को वो अपने शहरग मानते हैं, अपने गले की रग मानते हैं, तो हम उस रग को काटने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। It is important that the Pakistan authorities remember that the peace in this region cannot be affected by their hawkish, uncalled for statements. The BJP condemns the statement made by the Army Chief of Pakistan. It is for the civilian elected government of Pakistan to speak up in order that the region remains peaceful and help the development of all the democracies around. This uncalled for statement by the Army Chief should be rejected comprehensively, and BJP voices its concern
that such statements do not help in building good neighborhood. कश्मीर हमारा सिरमौर है और किसी की ताकत नहीं है कि हमारे जिस्म से हमारे सिर को अलग कर सके. But what the army chief has said, I think is bizarre. It is absolutely bizarre. I would like to remind you that Pakistan, it was not India that annexed Kashmir. He said that Kashmir is the jugular vein of Pakistan. I say that Kashmir is the heart of Hindustan. खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं. देश की अधिकांश जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाले व सांप्रदायिक दंगे ही मिले हैं. सर्व समाज में से गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों का कोई विकास नहीं हुआ. अल्पसंख्यकों की कोई सुनवाई नहीं. तमाम रिपोर्टें कब से दबी हैं. पर हमें आशा है कि बहन कुमारी मायावती जी देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय से जुड़े अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के सपनों को जरूर साकार करेंगी. अतः हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के BSP को सफल बनाएं. इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट. क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग के बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है. मजदूर है भारत के मजबूत हाथ. मजदूर भाई बहनों को मिलेगी मुफ्त दवाइयाँ और इलाज की सुरक्षा, साथ में पेंशन की गारंटी भी. कांग्रेस की टीम है आपके साथ. हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की. इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं. हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं. इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए. समाजवादी पार्टी. समाजवादी पार्टी को वोट दें. इंटर पास छात्राएं कन्या विद्याधन योजना की मदद से आगे बढ़ रही हैं. हाई स्कूल पास युवा नौकरी मिलने तक बेरोजगारी भत्ता की मदद ले रहे हैं. इंटर पास छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटे गए. समाजवादी पार्टी. समाजवादी पार्टी को वोट दें. ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं. यौम मई यानी मे डे के मौके पर एशियाई मुल्कों में रैलियों और मार्चों का एहतमाम किया गया. इस मौके पर मेहनत कशों के साथ इंसाफ किए जाने का पुरजोर मुतालबा किया गया. हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस और कम्बोडिया जैसे मुल्कों में मेहनत कशों के हकूक के तहफ्फुज़ की आवाजें भी
बुलंद की गई। हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में यौम मई के मौके पर मेहनत कशों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के हक में रैलियां निकाली गईं। मेहनत कशों को बेहतर सहूलतों और मुआवजे में इजाफे का मुतालबा किया गया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गारमेंट फैक्ट्री के हजारों मजदूरों ने एक बड़ी रैली में हिस्सा लिया। मजदूरों ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। गुज़िश्ता बरस नाजायज तौर से कायम राना प्लाजा गारमेंट फैक्ट्री महदूद होने के सबब 1100 अफराद हलाक हो गए थे। कम तनख्वाहें देने वाले मुल्कों में बांग्लादेश भी शामिल है। उधर फिलिपाइन की राजधानी मनीला में हजारों अफराद ने यौम मई के मौके पर एहतजाजी मार्च किया। उधर कंबोडिया में हुकूमत ने यौम मई के मौके पर रैली निकालने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए रैली की गई। सलामती दस्तों ने मुजाहिरीन की पिटाई की। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता की सड़कों पर उतरे हजारों मजदूरों ने इस बरस तनख्वाह में 30% इजाफे का मुतालबा किया। मलेशिया में मजदूरों ने मुजवजा टैक्स के खिलाफ रैली की। उधर ताइपी में मजदूरों ने बेरोजगारों के साथ मिलकर कम मजदूरी के खिलाफ एहतजाज किया। हांगकांग में एहतजाजियों ने बेहतर जिंदगी का मुतालबा करते हुए हुकूमत से मकामी अफराद को मुलाजमत देने पर तवज्जो देने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अधूरे ख्वाब की टीम आज एक बार फिर पहुंच रही है प्रदेश की राजधानी जयपुर के 4 दीवारी इलाकों में। शहर की ज्यादातर मुस्लिम आबादी गुलाबी शहर के इसी इलाके में बसती है। यहाँ पर हवा महल से लेकर पुरानी विधानसभा तक मौजूद है। सिटी पैलेस और जंतर मंतर भी 4 दीवारी की शान बढ़ाते हैं। तो आज हमारी टीम 4 दीवारी या फिर कहा जाए गुलाबी शहर में रहने वाले मुसलमानों के हालात का जायजा लेगी और जानने की कोशिश करेगी कि अक़लियतों के इलाकों में पीने के स्वच्छ पानी, सड़कें, अस्पताल और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं या नहीं। या फिर इन्हें भी दूसरे शहरों और कस्बों में रहने वाले मुसलमानों की तरह भुला दिया गया है और इनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। आइए सबसे पहले चलते हैं एक तालीम इदारे में और देखते हैं कि यहाँ दीनी और दुनियावी तालीम देने के क्या इंतजाम किए गए हैं। कदीम ज़माने में लोग जो है ना एजुकेशन की तरफ रुजू नहीं थे, लेकिन अब जो है काफ़ी जो है बच्चों अभिभावकों में भी काफ़ी चेंजिंग आई है। वो सारे के सारे अब सोचते हैं कि बच्चों को तालीम देना ज़रूरी है और गवर्नमेंट की जो सुविधाएं मिल रही है उसका भी लाभ लेना चाहते हैं। जो स्कूलों में जो तालीम है वो मदरसों में तालीम उसके इक्वल और समानीकरण के हिसाब से दिया जा रहा है, तो अब बच्चों का रुझान मदरसे की तरफ बढ़ा है और बच्चे स्कूल से ज़्यादा अब इसको जो है तरजीह दे रहे हैं कि मदरसों में भी अच्छी तालीम हो रही है, मदरसे में जा कर के दीनी और दुनियावी तालीम भी हासिल करें। और हमारे मदरसे में भी काफ़ी जो है ना बच्चों के अंदर अभिभावकों के अंदर भी उत्साह है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडमिशन दिला रहे हैं बच्चों को। सभी सब्जेक्ट तालीम दिए जाते हैं। दीनी तालीम के अलावा यहाँ पर दुनियावी तालीम भी दी जाती है। बच्चों को जो एजुकेशन के अलावा और भी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे कभी ड्राइंग क्लासेस ले ली हैं, कभी कुछ ना जीके क्लासेस ले ली हैं। तो मतलब जो रेगुलरली तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी कंटिन्यू इसको ले लिया जाता है। 12 साल से पैरा टीचर हूँ। हमारे मदरसे में पहले 2 पैरा टीचर थे,
फिर जैसे जैसे यहाँ बच्चों की तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे मदरसों में